غزہ میں 20 نکاتی امن پلان پر عمل درآمد کا اہم مرحلہ طے۔ حماس نے 20 سال سے قائم غزہ حکومت تحلیل کر دی۔ حماس کی ہنگامی حکومت کے سربراہ نے استعفیٰ جمع کروا دیا۔ امید کرتے ہیں غزہ انتظامی کمیٹی جلد سے جلد غزہ کا کنٹرول سنبھالے گی۔ ثالثوں کا کام ہے وہ کمیٹی پر غزہ میں جلد سے جلد داخلے کے لیے زور دے۔ حماس حکام کی نیوز کانفرنس، واضح کر دیا فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ اسرائیل کو اپنا فیصلہ برقرار رکھنے کا جواز نہ مل سکے۔ نیشنل کمیٹی فار ایڈمنسٹریشن آف غزہ غزہ انتظامی کمیٹی نے تباہ شدہ پٹی کا انتظام سنبھالنے کی تیاری ظاہر کر دی۔ سربراہ غزہ انتظامی کمیٹی کے مطابق کام کے لیے درکار وسائل ملتے ہی ذمہ داری سنبھالنے کو تیار ہیں۔ کمیٹی کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ غزہ میں ایک ہی اتھارٹی، ایک ہی قانون اور ایک ہی فورس موجود ہو۔ ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے سیاسی، انتظامی اور سیکیورٹی ماحول فراہم کرنے کا مطالبہ۔ غزہ پر صہیونی فوج کے حملے جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 6 فلسطینیوں کا قتل عام۔ اکتوبر 2025 میں نام نہاد جنگ بندی کے بعد سے 1072 فلسطینی شہید ہو چکے۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری حملوں میں مجموعی شہادتیں 73,098 ہو گئیں۔ 1,73,571 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ آئی پی پی کے دوستوں سے اور مسلم لیگ کے دوستوں کے ساتھ مل کے وہ وفاق میں ایشوز ہم مل کے اٹھائیں گے اور مل کے وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ اپنے مسائل کا حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا گلگت بلتستان کی عوام سے کیا گیا حق حاکمیت کا وعدہ پورا کرنے کا عزم۔ جلد قومی اسمبلی میں گلگت بلتستان کے نمائندگان موجود ہوں گے۔ بلاول بھٹو کا گلگت میں وزیر اعلیٰ کی تقریب اہل برداری سے خطاب۔ مینڈیٹ تسلیم کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف سے اظہار تشکر۔ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کے عزم کا اظہار۔ ساتھ ہی واضح کیا کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو آئینی حقوق دینا پڑیں گے۔ پرانی تنخواہ پر چلنے کو تیار نہیں۔ کچھ جماعتوں کا آزاد کشمیر انتخابات کا بائیکاٹ افسوسناک قرار۔ وہ انڈس کو، صندوق کو ایک ہتھیار کے طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہم صندوق پہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جنگ لڑنا پڑیں گے تو جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ گلگت بلتستان آزاد کشمیر سے لے کے لاڑکانوں تک کے عوام تیار ہے۔ سنتاز معاہدے پر سمجھوتا نہیں ہوگا، جنگ بھی لڑنا پڑی تو لڑیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بھارت کو دو ٹوک پیغام۔ کہا جنگ میں عبرتناک شکست کے بعد بھارت سندھو کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ مودی کو بتانا چاہتے ہیں افغانستان کے ذریعے اس کی سازشیں بھی ناکام ہوں گی۔ تمام الرحمن الرحیم میں امجد حسین بحیثیت وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خدائے بزرگ و برتر کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ امجد حسین ایڈوکیٹ نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے حلف لیا۔ گلگت بلتستان کے عوام نے پیپلز پارٹی کو بھاری مینڈیٹ دیا، توقعات پر پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ وزیر اعلیٰ امجد حسین ایڈوکیٹ کا تقریب سے خطاب۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ امجد حسین نے گلگت میں یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ سنتاز معاہدے کے تحت پاکستان کا پانی پر ناقابل تنسیق حق ہے، ہر صورت تحفظ کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا ایکس پر بیان۔ واضح کر دیا بھارت کی جانب سے سنتاز معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل رکھنے کی ناکام کوشش، کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ اس اقدام سے بھارت کو شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اسلام آباد میں گروپ
कैप्टन कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई। मुलजिम के खातून के साथ मोटरसाइकिल पर जाने की फुटेज सामने आ गई। मुलजिम को दुकान से कपड़े तब्दील करते भी देखा जा सकता है। फैजाबाद बस अड्डे से लाहौर रवाना होने की कोशिश की। मुलजिम साथ अब्बासी बंद खन्ना रोड का रिहायशी और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर बतौर सेल्समैन काम करता रहा। मुलजिम की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। अदालत ने 14 रोजा रिमांड पर शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। सदर और वजीर आजम का शहीद ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत का इस्लामाबाद की अहम शाहरा पर वारदात तशवीशनाक करार दे दी। आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के इक़दामात पर जोर। वजीर आजम का कहना है कि खातून की जान और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश करके बेमिसाल जुर्रत, बहादुरी और फ़र्ज शनासी की मिसाल कायम की। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनेई और उनके अहल खाना के जसदे खाकी तेहरान के आज़ादी स्क्वायर पहुंच गए। लाखों अफराद की शिरकत। ताहद निगाह अक़ीदतमंदों का सैलाब उमड़ आया। जुलूस तकरीबन 10 से 12 घंटे तक मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ मेहराबाद एयरपोर्ट पर इख्तिताम पजीर हुआ। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई की मैयत क़ुम मुंतकिल की जाएगी। इराक के शहर नजफ और करबला ले जाए जाने के बाद शहीद ईरानी रहबर को मशहद में सिपुर्दे खाक किया जाएगा। ईरानी अवाम का दीवार पर अपने जज्बात लिखकर शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई से मोहब्बत का इजहार। वायरल वीडियो में सफ़र आखिरत के दौरान लोगों को दीवारों पर दुआएं और यादें लिखते देखा जा सकता है। बाज़ तहरीरों में अमरीका और उसके रहनुमाओं के खिलाफ सख्त रिमार्क्स भी लिखे गए। तेहरान की ग्रैंड मस्जिद इसराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए यमन से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मस्जिद में दाखिल हुए। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया है कि शहीद रहबर आला ने सबको सिखा दिया कि ईरान का अजीम सरमाया उसके अवाम और इत्तेहाद है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी पैगाम में ईरानी सदर ने कहा कि हमदर्दी, हम आहंगी और अवाम की मुखलिसाना खिदमत जारी रखेंगे। ईरान की इज्जत, तरक्की और अजमत के रास्ते पर चलते रहेंगे। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का शहीद सुप्रीम लीडर के कातिलों को सजा मिलने तक चैन से ना बैठने का ऐलान। ईरानी कौम, मुसल्लह अफवाज, इंसाफ और ईरानियों के हुकूक से कभी दस्तबरदार नहीं होगी। अमीर हातमी का सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में पैगाम। ईरानी बहरिया के सरबराह शहराम ईरानी ने बता दिया कि आयतुल्लाह के जनाजे में तमाम मुसलमानों की शिरकत ने साबित कर दिया कि मज़ाहमत की अब कोई सरहद बाकी नहीं रही। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन की रसूमात शिरकत पर पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का इजहार तशक्कुर। ईरानी हुकूमत और अवाम की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तान की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और ईरान ने हमेशा मुश्किल और खुशी के मौके पर एक दूसरे का साथ दिया। एक्स पर पैगाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी किर्गिस्तान के 4 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी किर्गिज हम मनसब की दावत पर दौरा कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल के ओहदे की उम्मीदवार मारिया फर्नांडा एस्पेनवोसा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में मौसर इस्लाहात और कसीरुल जहती निज़ाम के फ़रोग़ की हिमायत का आदा। इसहाक डार ने आलमी उमूर में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार को मज़ीद मज़बूत बनाने पर जोर दिया। पाकिस्तान आलमी अमन, खुशहाली और बैनुल अक़वामी ताउन के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। इसहाक डार की गुफ्तगू। पाकिस्तान और IMF के आइंदा जायजा मुज़ाकरात सितंबर में मुतवक्की हैं। तौसीई फंड, फैसिलिटी और क्लाइमेट फाइनेंसिंग जायजे के लिए बैक वक्त मुज़ाकरात होंगे। गुज़श्ता माली साल की दूसरी छमाही कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। ज़राए बताते हैं कि मुज़ाकरात की कामयाबी पर दोनों प्रोग्राम्स की अगली अक़सात जारी होंगी। दोनों प्रोग्राम से अब तक पाकिस्तान को 4 अरब 60 करोड़ डॉलर्स मिल चुके हैं। The overall quantum of the investors, but the number of youth and Gen Z which has come in. And the more we go on this type of digital journey, the more youth we can sort of bring in.
वज़ीर ख़जाना ने इन्वेस्ट पाक पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। जैस कैश ऐप के जरिए 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की जा सकेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इन्वेस्ट पाक पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को अहम संग-मील और सरमायाकारी के नए दौर का आगाज़ करार दे दिया। वाज़ेह किया कि माशी तरक्की के लिए निजी शोबे का किरदार इंतहाई अहम है। नौजवानों खुसूसन जेन ज़ी को सरमायाकारी की जानिब राग़िब करने की कोशिश है। इन्वेस्ट पाक पोर्टल डिजिटल सरमायाकारी के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। सरमायाकारों को ऑनलाइन सहूलियात मुयस्सर होंगी। जदीद डिजिटल निज़ाम से शफाफियत और सहूलत में इजाफा होगा। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद का तकरीब से खिताब। वाज़ेह किया कि सरमायाकारी के फरोग के लिए मुअस्सर इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स को हुकूमती निजकारी प्रोग्राम की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के एयरपोर्ट्स शामिल। वफाकी हुकूमत के 5 साला निजकारी प्रोग्राम की नई फहरिस्त सामने आ गई। वज़ीर आला पंजाब के अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के कुरानंदाजी। मरियम नवाज ने कामयाब कैंडिडेट्स को फोन करके मुबारकबाद दी। कुरानंदाजी के खुशनसीब को 20 साल के लिए 4 एकड़ जमीन दे रहे हैं। ताज के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शुमाली वज़ीरिस्तान में तरक्याती सरगर्मियाँ 1 हफ्ते के अंदर बहाल करने की हिदायत कर दी। तरक्याती कामों की बहाली के लिए दरकार अमला फौरी देने और ज़म इज़ला के आउट ऑफ स्कूल बच्चों को तालीमी धारे में लाने का भी हुक्म। वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल में जदीद ई-एपल निज़ाम का इफ्तिताह। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तकरीब से खिताब में कहा कि वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल में ई-एपल निज़ाम अहम पेशरफ्त है। वसाइल और वक्त की बचत मुमकिन होगी। आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़िंदगी के हर शोबे में बढ़ गया है। बलूचिस्तान के इलाके हन्ना उड़क में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 4 शहरी जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। वाक़ये के खिलाफ लवाहिकीन का धरना। मुजाहिरीन ने एयरपोर्ट रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का हमलावरों से झड़प के दौरान 18 नौजवान लापता होने का दावा। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू का इलाके का दौरा। बताया वाक़ये के बाद वज़ीर आला की हिदायत पर ऑपरेशन किया गया है। 3 दहशतगर्द हलाक और 2 अहलकार जख्मी हुए।